Students, welcome in RBC Online. I am Dattatreya Raut. I have to deliver the new aspects in the molecular basis of inheritance. In chapter number 4, molecular basis of inheritance, the Griffith experiments and the Avery McLeod McCarthy and McLeod experiments in regards to the DNA as the genetic material. Now, in the regards to the DNA as the genetic material, so in these genetic materials, Griffith, which are the carried out the experiments to identify the DNA as a genetic material, which are the carried out the experiments on the mice. Take Diplococcus pneumoniae to cause the pneumonia, but Griffith are not find out the DNA as a genetic material. Then goes to the in 1944, then there is a very McCarthy McLeod's carried out the experiments, which are the not a success in their experiment to find out the DNA as a genetic material. So, in further studies about the Hershey and Chase experiments, I have to give detailed information after this completion of the Griffith experiments and the Avery McCarthy McLeod experiments. Now, in the both experiments, Avery McCarthy McLeod experiments, which are the to find out the which one is the genetic material, DNA is the genetic material or the protein as the genetic material. So, in the molecular basis of inheritance, these are the very interesting chapters and the part of this Griffith experiments and Avery McCarthy and McLeod experiments. Now, in details to about the molecular basis of inheritance, Griffith experiments and the Avery McCarthy and McLeod experiments. So, in the Griffith experiments, what about Griffith experiment? अगर हम Griffith experiment के बारे में जानते हैं, just before in 1928 के पहले साइंटिफिक सोसाइटी में ये मानना था कि प्रोटीन एज द जेनेटिक मटेरियल, जिस प्रकार से फेडरिच ने एक्सपेरिमेंट किया, कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द पस फ्रॉम द बैंडेजेस, आइसोलेट द white blood cells and then find out the nuclein which are having the acidic properties, so that giving the name as the nucleic acid. So, in the nucleic acid there are the two type of the nucleic acid are the find out, one is the DNA and another one is the RNA. DNA is the deoxyribose nucleic acid, RNA is the ribose nucleic acid. Then after in earlier in 19th century there is a number of the geneticists are believed that, and also the convenience that the protein is the genetic material. Protein is the genetic material, not a DNA. But later on, then in 1928, British medical officer Frederick Griffith performed an experiments on bacterium Streptococcus pneumoniae. In this Streptococcus pneumoniae is the bacteria which cause the pneumonia, and that bacteria is the Streptococcus pneumoniae. Then in 1928 Frederick Griffith performed the experiments. Then what happens in the experiments? Streptococcus pneumoniae that cause the pneumonia in humans and other mammals. ये जो बैक्टीरिया है ये Streptococcus pneumoniae
इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं, ह्यूमन्स में भी कॉज करवाते हैं और मैमल्स में भी कॉज करवाते हैं, कॉज द निमोनिया इन ह्यूमन्स एंड अदर मैमल्स, सो दैट Griffith performed an experiment to find out which one is the genetic material. Griffith used two strains. Griffith ने दो प्रकार के स्ट्रेन लिया और Griffith used two strains or the two genetic varieties of the Streptococcus pneumoniae, two genetic varieties of the Streptococcus. Griffith used the two strains for their experiments to find a cure for pneumonia, which was a common cause of the death at that time. उस समय 1928 के समय pneumonia is a very common type of the diseases and find to cure for the pneumonia पर अगर कोई क्यूर फाइंडिंग होता है which was a common cause of the death, उस समय मृत्यु का एक कॉमन कॉज होता था, that will be a pneumonia at that time, so that Griffith are decided to carried out the experiments on the taking two genetic varieties of the Streptococcus. Now this Streptococcus pneumoniae, which is the cause the infection to the mammals, cause the infection to the humans. So in the Griffith experiment, firstly to take the two strains, two genetic varieties of a Streptococcus. So in this Streptococcus, Griffith experiments are furtherly to implemented the two genetic varieties of the Streptococcus. Now in the Streptococcus pneumoniae, which is the cause the pneumonia to the mammals, in this after that what happens, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने टू स्ट्रेन्स को यूज़ किया है, ये जो दो स्ट्रेन्स होते हैं, these two strains, one is the virulent strain, smooth pathogenic encapsulated S type, ये कैप्सुलेटेड पैथोजेनिक स्मूथ एंड वायरुलेंट होते हैं एस टाइप, विच आर दी वायरुलेंट वन. इसका मीनिंग होता है कि दैट विल बी कॉज द इन्फेक्शन टू दी मैमल्स, कॉज द निमोनिया. स्मूथ पैथोजेनिक encapsulated S type, and another strain, another variety of Streptococcus pneumoniae is the non-virulent. ये जो non-virulent होती है, रफ होती है, नॉन पैथोजेनिक एंड नॉन कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड नहीं होती है, उसे R टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, R टाइप ऑफ द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया एंड S टाइप ऑफ द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया. R type of the strain of the bacteria and the S type of the strain of the bacteria. You remember that, आपको ये याद रखना होगा कि S type of the bacteria is a smooth bacteria, virulent होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, इनकैप्सुलेटेड होते हैं, उसका जो शेप होता है कैप्सुलेटेड की तरह होता है. नॉन वायरुलेंट ये पैथोजेनिक नहीं होते हैं, रफ होते हैं, और नॉन पैथोजेनिक एंड नॉन कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड नहीं होते, उसके अगेंस्ट में उसे रफ यानी कि R टाइप ऑफ द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया. देन व्हाट हैपन्स, देन when this selection of the such type of the strain of the bacteria, दो प्रकार के बैक्टीरिया का सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने इस प्रकार से वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया को इस प्रकार से उसे इम्प्लीमेंट करवाया. जब इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द selection of the Griffith experiments to strain of the bacteria, and these two strain of the bacteria which are Griffith conducted the 4 experiments on Streptococcus bacteria. Streptococcus bacteria पे उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट्स करवाए. क्या 4 एक्सपेरिमेंट करवाए? उन्होंने
जब दो स्ट्रेन को सेलेक्ट किया, वायरुलेंट स्ट्रेन एंड नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, वायरुलेंट स्ट्रेन को यस टाइप कहलाते हैं और नॉन वायरुलेंट को आर टाइप ऑफ द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, which are the cause the infection pneumonia to the mammals. Then carried out the conducted the 4 experiments on the streptococcus bacteria. First experiment में उन्होंने क्या किया? First experiments when he inject the bacteria of R strain. R strain क्या होती है? नॉन वायरुलेंट होती है, नॉन पैथोजेनिक होती है, इसका कोई भी इस बैक्टीरिया से निमोनिया कॉज नहीं होता। उसको माइस को इंजेक्ट करवाया। व्हेन ही इंजेक्टेड बैक्टीरिया ऑफ स्ट्रेन आर टू अ माइस, द माइस सर्वाइव्ड बिकॉज इट डिड नॉट डेवलप द न्यूमोनिया। वो सर्वाइव हुआ, वो जीवित हो गया, जीवित रहा, उसे किसी भी प्रकार का निमोनिया कॉज नहीं हुआ। He did not develop pneumonia, इसे उसे निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। Because Griffith are the injected the non-pathogenic bacteria, non-virulent bacteria to the mice R strain of the bacteria. Mice survived because did not develop a pneumonia. यह फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हुआ। सेकंड एक्सपेरिमेंट में व्हेन ही इंजेक्टेड अ बैक्टीरिया ऑफ स्ट्रेन, यस, अब देखिए नेक्स्ट माइस को अगला इंजेक्शन जो दिया है, ही इंजेक्टेड बैक्टीरिया ऑफ यस स्ट्रेन। यस स्ट्रेन किस प्रकार से होती है? यस स्ट्रेन जो होती है ये वायरुलेंट होती है, पैथोजेनिक होती है, जिस प्रकार से ये पैथोजेनिक होने के कारण वो इन्फेक्शन कॉज करती है। व्हेन ही इंजेक्टेड बैक्टीरिया टू द स्ट्रेन यस टू माइस, द माइस डेवलप निमोनिया एंड डाइट। वहाँ पे क्या हुआ? ये निमोनिया डेवलप हुआ क्योंकि इंजेक्टेड दी बैक्टीरिया ऑफ यस स्ट्रेन, पैथोजेनिक बैक्टीरिया का अगर इंजेक्शन के माध्यम से उस माइस के बॉडी में निमोनिया डेवलप हुआ और निमोनिया होने के कारण उसकी डेथ हो चुकी। देन आफ्टर द डेवलप द निमोनिया एंड डाइट, उसका मृत्यु हुआ। किस कारण? निमोनिया के कारण, क्योंकि निमोनिया आर अ बैक्टीरिया विच आर द कॉज टू द इन्फेक्शन टू द माइस एंड देन माइस डाइट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यस स्ट्रेन को दिया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आर स्ट्रेन को दिया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने व्हेन ही इंजेक्टेड द हीट किल्ड बैक्टीरिया टू द स्ट्रेन यस टू माइस, माइस वंस अगेन सर्वाइव्ड। उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया? ग्रिफिथ व्हेन ही इंजेक्टेड द हीट किल्ड अ बैक्टीरिया ऑफ स्ट्रेन यस टू माइस, जबकि यस स्ट्रेन जो पैथोजेनिक होते हैं, ये जो पैथोजेनिक यस स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया दैट विल बी हीट किल्ड, उसे हीट करवाया। हीट करने के बाद वो बैक्टीरिया किल हो गए। फिर बाद में जिस बैक्टीरिया व्हेन आर इंजेक्टेड टू द माइस, माइस वंस अगेन द सर्वाइव, बाद में माइस को किसी प्रकार का निमोनिया तो कॉज नहीं हुआ, वो सर्वाइव रहा, वो जीवित हो गया, जीवित रह गया। इसका जब उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किया तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये क्या पाया? ही मिक्स दी, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ही मिक्स दी हीट किल्ड यस बैक्टीरिया विद द बैक्टीरिया ऑफ यस स्ट्रेन ऑन आर स्ट्रेन आर इंजेक्ट टू द माइस, यानी कि माइस को जब दोनों प्रकार के बैक्टीरिया का इंजेक्ट करवाया, ही मिक्स विद द हीट killed yes bacteria with the live bacteria of R strain. R strain की जो बैक्टीरिया है वो लाइव थे और हीट किल्ड एस बैक्टीरिया जो थे उसको किल करवाया एंड विद द लाइव बैक्टीरियल ऑफ स्ट्रेन आर इंजेक्टेड टू द माइस, माइस को इंजेक्टेड करवाया। Then mice died and the Griffith recovered a large number of the live strain S bacteria from the blood of the dead mice.
माइस डाइट, जबकि फोर्थ एक्सपेरिमेंट में माइस को क्या हुआ, माइस डाइट हो गया। दैट विल बी ग्रिफिथ रिकवर्ड लार्ज नंबर ऑफ द लाइव स्ट्रेन्स ऑफ द यस बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड ऑफ द डेड माइस, जबकि उन्होंने इसको क्या किया है, दैट विल बी टेक ब्लड्स ऑफ द डेड माइस का ब्लड को कलेक्ट करवाया, और फिर बाद में कलेक्ट होने के बाद देन आर दी ऑब्जर्व इन द लेबोरेटरी में जब इसका ऑब्जर्वेशंस करते समय हम देख सकते हैं इसमें, नाउ यू हैव टू रफ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन एंड रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। जबकि हम यहाँ पर देख सकते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, सेकंड एक्सपेरिमेंट में, थर्ड एक्सपेरिमेंट में एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट में रफ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। जबकि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में माइस को आर स्ट्रेन देने के बाद माउस लाइव रहा, देन स्मूथ स्ट्रेन जो कि पैथोजेनिक होते हैं वो इंजेक्ट करवाने के बाद माइस डेड हुआ। जब थर्ड एक्सपेरिमेंट में स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल करने के बाद इंजेक्ट करवाया तो माइस लाइव रहा। देन जबकि लाइव स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया that will be mixed with and inject to the mice dead। इस सभी एक्सपेरिमेंट के आधार पर जब ग्रिफिथ ने ये कंक्लूजन करवाया, ये कंक्लूडेड पर उन्होंने ये प्रूव करवाया, जबकि इन दिस फोर एक्सपेरिमेंट्स समथिंग हैड कॉज हार्मलेस स्ट्रेन or bacterium to the change into the deadly yes strain bacterium। जबकि फोर्थ एक्सपेरिमेंट में समथिंग हैड कॉज हार्मलेस स्ट्रेन आर बैक्टीरियम टू चेंज इनटू दी, जो कि आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया होती है वो हार्मलेस होती है, उसका कन्वर्जन किस में हुआ, दैट चेंज इनटू द डेडली यस स्ट्रेन बैक्टीरिया, चेंज इनटू अ डेडली यस स्ट्रेन बैक्टीरियम, जो कि स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होती है ये स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हो जाती है। इस फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जबकि ग्रिफिथ ने ये कंक्लूडेड करवाया, ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरियम मस्ट बी टेकन अप, R strain bacterium must have taken up to what he called as a transforming principle from the heat killed bacterium, which allowed R strain to get transformed into the smooth coated bacterium and become a virulent। Griffith concluded that, इसे कंक्लूडेड करवाया, जबकि ग्रिफिथ ने इसे कंक्लूडेड करने के लिए आर स्ट्रेन बैक्टीरियम मस्ट हैव टेकन अप, जबकि आर स्ट्रेन जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, टू व्हाट ही कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम दैट हीट किल्ड बैक्टीरियम में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, विच अलाउड आर स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया, गेट ट्रांसफॉर्म इनटू दी स्मूथ कोटेड बैक्टीरियम। जबकि आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट होते हैं, रफली होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं, उसमें स्मूथ या स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया दैट आर हैविंग द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, and that's why this transforming principle get transferred into the smooth coated bacterium and becomes a virulent। जबकि आर स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट होते हैं उसे वायरुलेंट में कन्वर्ट करवाया,
that will be converted into the virulent. These are the transforming principle which is the present in the pathogenic virulent bacteria, that is called the S type of the S strain of the bacteria. Then goes to the Avery-McCarty-McLeod experiments. अवेरी-मैककार्टी-मैक्लॉयड एक्सपेरिमेंट में जब हम देखते हैं, जबकि 1928 में ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट करवाया, that will be comes to concluded that and convenience that there is regards to the ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स. जबकि फोर्थ एक्सपेरिमेंट के बाद ग्रिफिथ ने ये कंक्लूडेड करवाया कि देयर इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स आर द प्रेजेंट इन द स्मूथ S strain type of the bacteria that will be having a transforming principle to convert the R strain into the S strain virulent bacteria. Then after the Avery-McCarty-McLeod experiment, what happens? इन्होंने क्या करवाया in 1944, जबकि in 1944 at that, so that after the 15 years later, 15 साल के बाद, after some 10 years of the research and the experimentation, US microbiologist Oswald T. Avery, Colin M. McLeod and Maclean McCarty, all at Rockefeller University in New York. जबकि हम देख सकते हैं कि 1944 में after this some 10 years of the research and experimentation, US microbiologist जो है Oswald T. Avery, Colin M. McLeod and Maclean McCarty, all the रॉकफेलर यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क, ये सभी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, बिलोंग्स टू दी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क. All these microbiologists that will be carried out the experiments, first evidence to prove that DNA is a genetic material. DNA is the genetic material. ये जो है, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है अवेरी मैकलॉड मैककार्टी, अवेरी मैककार्टी मैकलॉइड्स, ये फर्स्ट टाइम सक्सेस उन्होंने पाया, जबकि एविडेंसली प्रूव करवाया DNA इज द जेनेटिक मटेरियल. DNA ही जेनेटिक मटेरियल है. अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. थ्रू द एक्सपेरिमेंट दे प्यूरिफाइड द DNA, RNA and proteins and other material from the cell. Free extract of S cells strains and mixed with heat killed S strains and R cells separately, confirm which one could transform living R cell into the S cell. जबकि उन्होंने they are purified, उन्होंने क्या किया, जबकि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है कि कोई तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिनके कारण पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, हार्मलेस स्ट्रेन का कन्वर्जेंस वायरुलेंट में होता है, जबकि उन्होंने DNA को, RNA को, प्रोटीन्स को क्या किया, प्यूरिफाइड किया. एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द सेल, फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ द S सेल, S सेल का जो भी स्ट्रेन्स है and mixed with heat killed S strain and R cells separately, जबकि R strain का जो separately उन्होंने DNA, RNA, प्रोटीन्स को अलग किया. S strain जो heat killed S strain जो है, उनका भी उन्होंने प्रोटीन, RNA and DNA को सेपरेट करवाया. Which one could transform living R cell into the S cells. लिविंग आर सेल का यस सेल में कन्वर्जन करने के लिए विच वन कुड ट्रांसफॉर्म, कौन है
जो कि दैट विल बी अ ट्रांसफॉर्म लिविंग आर सेल इनटू दी यस सेल, जो कि यस सेल में कन्वर्ट करवाता है। इनके लिए उन्होंने कन्फ्यूजन थे। ग्रिफिथ जब भी वो एक्सपेरिमेंट करवाया था तब वो कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाए कि ये दोज वी आर हैविंग अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कौन है जो कि डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन्स है जिनमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। उसके बेस पर, उसी के आधार पर इन्होंने, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है अवेरी मैककार्टी मैकलॉइड्स, उन्होंने द मटेरियल फ्रॉम द सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ द यस सेल, यस सेल में का जो फ्री एक्सट्रैक्ट सेल का सेल फ्री एक्सट्रैक्ट को आइसोलेट करवाया, मिक्स विद हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड आर सेल्स सेपरेटली, जबकि यस सेल को आर सेल को सेपरेटली आइसोलेट करवाया। कन्फर्म विच वन कुड ट्रांसफॉर्म, कौन है जो कि ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। देन आफ्टर इन दिस 1944 these three microbiologists comes to a conclusions, comes to the only DNA was able to transform, only DNA was able to transform harmless strain into the a deadly strain, yes, जबकि only DNA was able to transform the harmless strain into the deadly yes strain। उन्होंने ये भी बताया ओनली डीएनए जो है कि उनमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होने के कारण हार्मलेस स्ट्रेन को डेडली स्ट्रेन यस में कन्वर्ट करवाता है। डीएनए वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म द हार्मलेस स्ट्रेन इनटू द डेडली स्ट्रेन यस। देन आफ्टर दे आल्सो डिस्कवर दैट, उन्होंने ये भी पता लगवाया, दे आल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीसियस, they also discovered that protein digesting enzymes proteaceous, RNA digesting enzyme RNase did not affect the transforming substances, was neither a protein nor a RNA. DNA digested with a DNase and did inhibit the transformation। देखिए अवेरी मैककार्टी मैकलॉइड्स ने ये भी पता लगवाया है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होते हैं प्रोटीसियस एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज अ आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट अ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस पर इन डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई भी परिणाम नहीं होता है। डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस, वाज नाइदर अ प्रोटीन नॉर आरएनए। डीएनए डाइजेस्टेड विद डीएनएज डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन। जो डीएनए डाइजेस्टेड विद डीएनएज, डीएनएज के साथ डीएनए डाइजेस्टेड विद द डीएनएज डिड इनहिबिट दी ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट करवाता है उस एंजाइम डीएनएज। डीएनए डाइजेस्टेड विद द डीएनएज डिड इनहिबिट दी ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ इन दी experiments, these experiments prove that transforming principle is a DNA, but all biologists were did not convenience। These experiment proved that, इस experiment से ये prove हो गया that transforming principle is a DNA, but all biologists were not convinced। सभी बायोलॉजिस्ट को ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट कन्वीनियंस नहीं कर पाए, कन्विंस्ड नहीं कर पाए। ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर नॉट कन्विंस्ड that DNA is the genetic material। DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, ये समझ नहीं पाए। अदर साइंटिस्ट, अदर बायोलॉजिस्ट इन
scientific society, other biologists were did not convenienced by the such type of the experiments DNA as the genetic material. So, in the genetic material, finally Alfred Hershey and Chase in 1952, जबकि 1952 में proved that DNA is the genetic material, not a proteins, by using the bacteriophages. जबकि बैक्टीरियोफेजेस का यूज़ करवा के हर्शे एंड चेस ने 1952 में एक्सपेरिमेंट के माध्यम से डीएनए को प्रूव करवाया, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। जबकि 1928 ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स आर फेल टू कन्वीनियंस टू द ऑल, which one is the a transforming principles, which one have a transforming principles. Then after in 1944 a very McCarthy McLeods are again to fail to convenience to the biologist, which one is the genetic material. कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन है या डीएनए है या आरएनए है, ये कन्वीनियंस करने के लिए फेल हो चुके थे। देन आफ्टर फाइनली अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस इन 1952, जबकि 1952 में ये दो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये सक्सेसफुली डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, जो कि ऑल बायोलॉजिस्ट को कन्वीनियंस करवाया, convinced that all the biologists and scientific society is to goes to success to convenience to the all the scientific society, all the biologists, DNA is the genetic material, DNA जो है तो genetic material है, not a protein, protein genetic material नहीं है। by using the bacteriophages, bacteriophages को यूज़ करवा के, जैसे कि इसको isotopes यूज़ करवाया, डीएनए ट्रांसफॉर्म्स बैक्टीरिया, रफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, जबकि रफ जो होते हैं, रफ स्ट्रेन आर स्ट्रेन जो होते हैं वो नॉन वायरुलेंट होते हैं। हीट किल्ड जो यह स्ट्रेन जो होते हैं, यह स्ट्रेन इज द वायरुलेंट वन एंड दैट विल बी हीट किल्ड स्मूथ, एंड देन आफ्टर द मिक्स्ड विथ this heat killed smooth virulent and these DNAs and proteases is the digestive enzymes. But now here the injected to the mice, one is the alive and another is dead. DNA which are having the DNA transforming principles which is the present in the DNA. So that in the detailed discussion regards to the Griffith experiments and a very McCarthy and McLeod experiments. Now my video, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से जब भी कोई नया वीडियो आपको अपलोड यूट्यूब पर हो जाएगा, तब अब यू कैन like and subscribe and share my channels to your friends. Thank you so much. Thank you so much.